چکوال کے علاقہ کھوکھر زیر میں جشن آزادی پاکستان کے موقع پر تاریخی کبڈی شو میچ حسن عاجز کبڈی کلب چکوال کی شاندار کامیابی۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق راجہ عمران مانی مرحوم کی یاد میں سدا بہار کبڈی گروپ طارق مرحوم حسولہ چکوال کی زیر نگرانی کھوکھر زیر میں ایک شاندار چیلنج کبڈی شو میچ منعقد کیا گیا۔ مقابلے میں حسن عاجز کبڈی کلب چکوال نے کمانڈو کبڈی کلب اٹک کو 35 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس سے شکست دے دی۔ میچ کے مہمان خاص راجہ محمد عمران، راجہ عبداللہ، ظہیر احمد بھٹا اور دیگر ممتاز شخصیات تھیں جو کہ شریک ہوئی۔ ڈھول کی تھاپ، پھولوں کے ہار اور نوٹوں کی بارش سے مہمانوں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ بہترین کھیل پیش کرنے پر سعید مشا کو 50,000 روپے نقد، ٹرافی اور مان سمان ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ مین آف دی میچ کے اعزاز جافی وہاب ربال اور ساہی وحید ایوان کے نام رہے۔ اختتامی لمحات میں ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گراؤنڈ گونج اٹھا۔ قصور سے خبر شامل کرتے چلے شہزاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ کوٹ رادھا کشن میں زہریلا دودھ بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز راؤ عبید الرحمان کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیم قصور نے ملک یونٹ پر چھاپا مارا۔ دوران چیکنگ پانی، پاؤڈر، کیمیکلز اور گھی ملا کر دودھ تیار کرنے والا شخص رنگے ہاتھوں گرفتار۔ 3000 لیٹر مضر سے دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا گیا، جبکہ دودھ بردار گاڑی، مشینری اور سامان قبضے میں لے کر مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ زہریلا دودھ لاہور میں سپلائی کیا جانا تھا۔ راولپنڈی سے بتائیں جی شیخ ارشد محمود کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران راولپنڈی کینٹ کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروکار تقریب۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ سی پی او نے جشن آزادی کے سلسلہ میں کیک کاٹا۔ تقریب میں ایس پی پوچوہار، ڈی ایس پی کینٹ، ایس ایچ او کینٹ اور انجمن تاجران کے ممبران اور سول سوسائٹی کی بھی شرکت۔ جشن آزادی کی خوشیوں میں ہم سب ساتھ ہیں۔ شرکا نے کہا پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے ہر وقت دعا گو اور مصروف عمل ہیں۔ سی پی او نے کہا راولپنڈی پولیس پنجاب حکومت کے احکامات کی روشنی میں فول پروف سیکورٹی انتظامات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں تاجر برادری کا اہم کردار ہے۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سہاوا محمد عمران اور ٹیم کی منشیات فروش ملزمان کے خلاف اہم کارروائی۔ منشیات فروش ملزم گرفتار۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ۔ جی بالکل، ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ سہاوا محمد عمران اور ٹیم کی منشیات فروش ملزمان کے خلاف ایکشن کارروائی۔ 2 منشیات فروش ملزمان سمیت شراب سپلائر ملزم گرفتار۔ بھاری مقدار میں ہیروئن، چرس اور شراب برآمد کر لی گئی۔ تھانہ سہاوا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش ملزمان سمیت شراب سپلائر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش ملزمان سے 1 کلو 130 گرام ہیروئن، 1 کلو 300 گرام چرس اور شراب سپلائر ملزم سے 10 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سہاوا میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، جن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا، کاروبار ٹھپ ہو گئے، ذمہ داران گھوڑے بیچ کر سونے لگے۔ شہریوں کی میڈیا سے گفتگو۔ نالوں کا کام سست روی کا شکار، لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے۔ دینا مین بازار اور ریلوے روڈ پر کئی ماہ سے نالوں کی مرمت پر کام جاری ہے، جو کہ ابھی تک ادھورا ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں اور کسٹمرز کو شدید مشکلات لاحق ہیں۔ شاپنگ کرنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ کئی دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت نالوں پر پھٹے رکھ کے کام چلایا ہے اور زیادہ تر دکانداروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ گاہک نالا کراس کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ دینا کی عوام کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو انہیں مکمل کیوں نہیں کرایا جا رہا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم اور اسسٹنٹ کمشنر دینا سے اصلاح احوال کا عوام نے مطالبہ کر دیا۔
DPO रहीम यार खान इरफान अली समूह का डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शहरियों के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत, फौरी बदला लेने का अज़्म कर दिया। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में DPO इरफान अली समूह के थाना GSP अशरफ कुरैशी के हमरा थाना अहमदपुर लम्मा और भोंग के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे SHO जावेद खान गोपांग और अब्दुल गफ्फार आहिर भी हमरा थे। अहले इलाका से मुलाकात, दो नौजवान के डाकुओं के खिलाफ मुजामत में जाँ बहक होने पर लवाहकीन से ताज़ियत की। आवाम की पुलिस के हमरा डाकुओं के खिलाफ साथ देते हुए बरसरे बेकार होने को डाकुओं की शिकस्त का पेशे खैमा करार दिया। कहा, पुलिस आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त तैयार है। बाहमी ताउन जारी रहा तो डाकुओं की शामत लाजिम है। रात जैसे आवाम ने डाकुओं का रास्ता रोका, उससे डाकुओं की शदीद हौसला शिकवी हुई है। आवाम के जानी नुकसान पर दुख है। पुलिस ने भी आवाम को खातिर जानों के नजराने पेश किए। डाकुओं को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ही इस दुख को कम किया जाएगा। आवाम और पुलिस इस जंग में अब शाना बशाना है, जिसके मस्बत नताइज बरामद होंगे। चार सदा से बताएं जी हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल मीरा प्रांग विलेज काउंसिल गरीबाबाद के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कबीना के अरकान सदर मुफ्ती क़य्यूम जान, सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान, नायब सदर फैसल शाह, जनरल सेक्रेटरी महाबुल, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल्ला और इम्तियाज पर मुश्तमिल वक्त ने वज़ीर आज़म के मशीर इख्तियार वली खान से इनके रहायशगाह पर मुलाकात की। अपने विलेज काउंसिल समेत तमाम मीरा प्रांग के मकीनों को बिजली और सुई गैस की लोड शेडिंग, निकासियाब और डेंगी मार स्प्रे जैसे संगीन दरपेश मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म के मशीर इख्तियार वली खान ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल होंगे, जिस पर वफ़द ने इख्तियार वली खान का शुक्रिया अदा किया। डेरा इस्माइल खान से आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह के मुताबिक हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सरगर्मियों के लिए जा रहा था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ की तहसील सालारजई के इलाका जबराड़ई में गुज़िश्ता रात आने वाले सैलाबी रैले से मुतअद्दिद घर तबाह हुए, राबता सड़कें और पुल भी पानी में बह गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारा फोकस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। रेस्क्यू टीम जिला बोनेर के लिए पहुंच रही हैं। इन्होंने लोगों से मोहतात रहने की अपील की। कहा, जब तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल न हो, तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली, सूबाई वज़रा और नाज़मीन मुतासरा इलाकों में रहें। मुल्क भर की तरह डेरा मुराद जमाली में भी शोहदाए करबला का चहलम नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आफ्ताब बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक करबलाई इमाम बारगाह डेरा मुराद जमाली में मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। बाद अज़ा मजलिस शिया उलमा कौंसिल बलूचिस्तान के सूबाई सदर मौलाना मुश्ताक हुसैन उमरानी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सईद कादिर शाह, सईद बहार शाह, इमदाद हुसैन मरी, हाजी हिदायतुल्लाह गुरशानी की क़यादत में मशी का जुलूस सख्त सिक्योरिटी में बरामद हुआ। मुकर्ररा रूट से होते हुए मरकजी इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में इख्तिताम पज़ीर हुआ। बाद अज़ाम मजलिस इज़ा से मौलाना मुश्ताक हुसैन उमरानी और मौलाना मोहम्मद रज़ा मुफक्किर और मौलाना शहरोज ने खिताब किया। लियाकतपुर में जश्न आज़ादी के सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चक 17A में पुरवकार तकरीब रखी गई, जिसमें तलबात ने मिली नगमे, तकारीर और खाके पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चक 17A में पुरवकार तकरीब मेहमान खास मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद ने खिताब में कहा, यौम आज़ादी हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और खिदमत वतन का दर्स देता है। हमें अपनी नई नस्ल को मुहिब्बे वतन और तालीम याफ्ता शहरी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। डिप्टी DEO शगुफ्ता नसीम हनीफ मुगल ने खिताब किया। कहा, यौम आज़ादी महज खुशी का दिन नहीं बल्कि अहदे वफा की तजदीद का दिन है। आज हमें ये सोचना होगा कि हम अपने वतन को तालीम, मेहनत और इखलास के जरिए कैसे मजीद मजबूत बना सकते हैं। हमारी तलबा मुल्क का कीमती सरमाया है। इनकी तालीम और तरबियत में हम सबको यकसां किरदार अदा करना है। इस मौका पर AEO आयशा मुश्ताक, हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक से सदफ मुश्ताक और स्कूल प्रिंसिपल नीमा निगत ने भी खिताबात किए, जिसमें उन्होंने आज़ादी की अहमियत, तालीम की ज़रूरत और तलबात की किरदार साजी पर जोर दिया। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज बुशरा कंवल ने सर अंजाम दिए। तकरीब के दौरान स्कूल स्टाफ को सर्टिफिकेट्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली तलबा को ट्रॉफियाँ भी दी गई, जबकि तकरीब के अख्ताम पर स्कूल लॉन में यादगारी पौधा लगाया गया। इस मौका पर स्कूल स्टाफ, तलबात और वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुल्क के
दीगर शहरों की तरह पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में भी चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस डेरा पीर रोशन अली गिलानी से बरामद हुआ। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज HD अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में भी चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस डेरा पीर रोशन अली गिलानी से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार सैयद साई में एहतमाम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि DPO उकाड़ा राशिद हदायत की हदायत पर सख्त इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जुलूस के जो छोटे रास्ते हैं उनको खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जुलूस के जो मातमी रास्ते हैं उनमें ठंडे पानी की सबीलें और लंगर के वसी इंतजाम भी किए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू के नौजवान भी अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अवैस अली जट, नुमाइंदा NAN 24 न्यूज़, जनरल सेक्रेटरी तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर। जी असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जिला कोहाट में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह, डिप्टी कमिश्नर कोहाट रहीमुल्लाह महसूद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान और दीगर जिला इंतजामिया कोहाट पुलिस और पाक फौज ने बाहमी ताउन से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया, जिसके तहत शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी की गई। आने जाने वाले अफराद की बारीक बीनी से चेकिंग की गई। चहलम का मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा वक्त पर बरामद हुआ, रवायती रास्तों से होता हुआ पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस, इंतजामिया और फौज के एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहे, जबकि मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों ने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने, शुरा की सहूलत के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दी। जिला इंतजामिया कोहाट की जानिब से जगह जगह पानी की सबीलें, मेडिकल कैंप्स और दीगर सहूलियात फराहम की गई। शहरियों ने चहलम की मजालिस जुलूसों में भरपूर पुरअमन शिरकत की। सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को भी खूब सराहा।